Hello and welcome back. I am Vandana and we are doing Science of Class 4. This is Riddhi series by Children's Voice Publications and here is a book, Science Wonders. So let's start chapter number 6, our digestive system and teeth. Let's move on to the main features of the chapter. So in this chapter we are going to learn about digestion of food in humans, digestive system, good eating habits for smooth digestion, our teeth, types of teeth, structure of a tooth decay, taking care of our teeth and microbes. So let's move on to the exercise gear up. Here you have to draw 5 food items in each plate. 5 food item बनाने हैं, 5 healthy food items बनाने हैं और 5 junk food items बनाने हैं. So this you have to do yourself. So let's move on to our first topic, which is digestion of food in humans. So you have already studied in the previous class that there are many internal organ systems in our body that work together. So previous class में हमने already पढ़ लिया है कि बहुत सारे organ systems हैं हमारी body में जो एक साथ काम करते हैं. Digestive system is one such internal organ system. Digestive system क्या है? इसी तरीके का एक organ system है. The food that we eat cannot be used directly by our body. जो भी हम खाना खाते हैं उसे directly हम अपनी body में use नहीं कर सकते. It must be broken down in a simpler form. अब ये जो खाना है इसे छोटे छोटे parts में divide करना होता है. The process of breaking down of food into a simpler form which can be used by the body is called digestion. और ये जो process है खाने को छोटे छोटे parts में divide करने का इसे ही digestion कहते हैं. Let's move on to the digestive system. So many organs in our body are involved in the process of digestion and together they make up the digestive system. So बहुत सारे organs हमारी body में इस process में जुड़े हुए होते हैं और ये सारे मिलके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बनते हैं. तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी की जहाँ पे माउथ है. सो ये मेन पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिंग प्रोसेस का. फिर एसोफेगस आता है जो हमारा फूड पाइप है. फिर आता है स्टमक जहाँ पे खाना आता है. फिर है लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. सो वी एंटर द फूड फ्रॉम हियर एंड इट एग्जिट्स फ्रॉम दिस प्लेस. So let's move on to the different parts of the digestive system. जिसके बारे में अभी हमने शॉर्ट में पढ़ा. तो पहला आता है माउथ. सो ये क्या है? The process of digestion begins in the mouth. जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से शुरू हो जाता है. अब माउथ में आपको क्या मिलेगा? टीथ, टंग, salivary gland, ये तीनों चीजें मिलेंगी. As soon as the food enters the mouth, teeth chew the food into smaller parts. जैसे खाना हमारे मुंह में जाता है दांत अपना काम करना शुरू कर देते हैं, उसे चबाने लगते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं. सलाइवा इन द माउथ मिक्सेस विद द फूड. अब हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जो थूक होती है, वो क्या करती है? खाने के साथ मिक्स हो जाती है और ये क्या करता है? फूड को और ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बना देता है. सो इट इज अ डाइजेस्टेड जूस सिक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड. ये एक डाइजेस्टिव जूस है जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड निकालता है. It breaks the starch into sugar. अब जो भी starch है उसे sugar में convert करता है and thus starchy foods taste sweet after we chew them. इसीलिए जितने भी starchy food रहते हैं जैसे हम उसे खाते हैं वो हमें मीठा लगता है. The tongue helps to push the food down the throat. और जो हमारा जीभ है वो क्या करता है? खाने को अंदर ढकेलने में मदद करता है. Next comes esophagus. It is also known as food pipe. इसे food pipe कहते हैं. And it is a pipe through which swallowed food is passed from the mouth into the stomach. ये वो पाइप है जिससे वो जो खाना हम अंदर कटकते हैं वो पास ऑन होके कहाँ तक जाता है? मुंह से स्टमक तक पहुंचता है इस पाइप की मदद से. नेक्स्ट आता है स्टमक. सो स्टमक क्या है? ये एक हॉलो मस्कुलर बैग है जहां पे फूड आगे और जाता है और डाइजेस्ट होता है. अब फूड को यहाँ पे क्या करते हैं? चर्न करते हैं, मिक्स करते हैं
ग्राउंड करते हैं और एकदम फाइन उसका पेस्ट बना दिया जाता है। The walls of the stomach secrete digestive juices. अब जो हमारे स्टमक के वॉल्स है वो ये सारा डाइजेस्टिव जूस जो है क्या करते हैं, ये सारा जूस जो है उसे मिक्स करते हैं फूड के साथ एंड ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इनटू अ सिंपलर फॉर्म। और जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हम खाते हैं उसे और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं। द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अबाउट 4 hours, 4 घंटे तक ये खाना हमारे पेट में रहता है एंड फ्रॉम द स्टमक फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है, 4 घंटे लगते हैं सारे प्रोसेस में और धीरे धीरे खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। अब बारी है स्मॉल इंटेस्टाइन की। सो ये क्या है, ये एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है एंड इट्स वॉल रिलीज digestive juices that mix with the food and digest it completely. अब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव डिशेस को रिलीज करते हैं जो कि हमारे खाने के साथ मिल जाता है और उसे और अच्छे से डाइजेस्ट करता है। The digestive juices of the liver and pancreas also enter the small intestine. अब लिवर के डाइजेस्टिव जूसेस, पैंक्रियास के डाइजेस्टिव जूसेस सब जो है जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूस देता है जिसको हम बाइल कहते हैं, जो क्या करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। द डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज इन लिक्विड फॉर्म। जो भी खाना है यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। The blood vessels present on the walls of the small intestine. अब small intestine के walls पे आपको blood vessels भी मिलेंगे। वो क्या करते हैं, जो भी digested food है उसे absorb कर लेते हैं, उसके सारे nutrients को absorb कर लेते हैं और उसे body के अलग अलग parts तक पहुंचाते हैं। The undigested food passes into the large intestine. अब जो भी undigested food है जो किसी काम का नहीं है वो सारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 22 feet लॉन्ग। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 22 feet लॉन्ग है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में वो खाना आके अब क्या होता है, सो हियर द एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड फूड आर अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी एक्सेस वाटर या फिर मिनरल्स उस अनडाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट रहते हैं उन सबको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। द सेमी सॉलिड वेस्ट जिसे हम फेसेस कहते हैं इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एनस। हमारे एनस से ये जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी सेमी सॉलिड फूड है, जो भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है, विच इज द एंड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो एनस है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर अ स्मूथ डाइजेशन। So our digestive system plays an important role in keeping us fit and healthy. हमारा जो digestive system है वो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमें फिट और हेल्दी रखने में। वी शुड thus adopt good eating habits. इसीलिए हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। Eat food at fixed hours, do not overeat. सही समय पे खाना खाएं, ज्यादा ना खाएं। Chew the food properly before swallowing it. खाने को अच्छे से चबाएं उसे गटकने से पहले। Drink plenty of water to remove waste products from the body. खूब सारा पानी पिए ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से वो बाहर निकल सके। Eat a balanced diet that includes food items from every group including roughage. हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए और यहाँ पे वो फूड आइटम्स होंगे जो हर एक ग्रुप से आएंगे, जो भी ग्रुप्स हमने पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में उस ग्रुप से जो भी आइटम्स आएंगे वो, और तो और रफेज, ये सारी चीजें हमारे बैलेंस डाइट पे होनी चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हर एक मील के पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं। अवॉइड जंक फूड, और जंक फूड को अवॉइड करें। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आवर टीथ।
सो वी ऑल हैव टीथ, हम सबके पास दांत हैं, एंड दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ, हमें अपने दांतों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द फंक्शंस ऑफ टीथ। दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड व्हिच मेक्स डाइजेशन इजी। तो ये जो टीथ है वो क्या करते हैं, हमें जो है फूड को चबाने में, उसे च्यू करने में, उसे बाइट करने में मदद करते हैं, एंड जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन आसान हो जाता है। दे हेल्प अस टू टॉक प्रॉपरली, हमें अगर आपस में बात करनी है तो टीथ की वजह से हम प्रॉपरली बात कर पाते हैं। दे गिव शेप टू आवर फेस, और हमारे फेस को शेप भी ये टीथ देते हैं। लेट्स मूव ऑन टू टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ। सो ह्यूमन बीइंग्स हैव टू सेट ऑफ टीथ, टेम्पररी एंड परमानेंट। ह्यूमन बीइंग्स में दो सेट होते हैं टीथ के, टेम्पररी और परमानेंट। न्यूबॉर्न बेबीज जो हैं उनके पास दांत नहीं होते, and a baby cuts its first tooth when it is about 5 to 6 months old. So बच्चे का जो पहला दांत है वो जब वो 5-6 महीने का होता है तब आता है। The teeth that appears first are called milk teeth और temporary teeth। तो जो पहला दांत आया 5-6 महीने पे उसे milk teeth या फिर temporary teeth कहते हैं। And a child has 20 milk teeth by the time it's 2.5 or 3 years old. So एक बच्चा जो जब वो 2.5 या 3 साल का होता है तो उसके पास 20 मिल्क टीथ आ जाते हैं। बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 12, सो 6 से 12 ईयर्स के बीच में द मिल्क टीथ फॉल आउट, मिल्क टीथ जो है गिर जाते हैं। वन बाय वन एक एक करके दे आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेट ऑफ टीथ कॉल्ड परमानेंट टीथ, और फिर इन मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ की जगह पे एक नया सेट आता है टीथ का जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। Now let's move on to the permanent teeth. So there are 14 teeth each in upper and lower jaw. So ऊपर आपको 14 teeth मिलेंगे, ऐसे ही नीचे आपको 14 teeth मिलेंगे permanent teeth के केस में। 4 more teeth come out by the age of 25 years and are called wisdom teeth. 4 और दांत बाहर निकल आते हैं जब आप 25 साल के होते हैं और इसे विजडम टीथ कहा जाता है। Here you can see temporary and permanent teeth. Now let's move on to types of teeth. So an adult human has 4 kinds of permanent teeth. So अगर हम एक adult human की बात करें तो यहाँ पे 4 तरीके के permanent teeth होते हैं on the basis of their shapes, size and function. इन सब का अलग अलग shape होता है, size होता है, function होता है। And they are, पहला है incisors। So हमारे पास 4 incisors होते हैं हर एक जॉ में, 4 ऊपर होते हैं और ऐसे ही 4 नीचे होते हैं। They are the front teeth having flat and acute edges. अब ये जो incisors हैं ये आगे के दांत हैं, तो ऐसे ये क्या होते हैं, ये काफी ज्यादा फ्लैट और एक्यूट एजेस वाले होते हैं। They are used for cutting and biting food. इसे जो यूज किया जाता है खाने को कट और बाइट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसिजर्स। सो इंसिजर्स के बगल में आपको ये कैनाइन्स मिलेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे। देर आर 4 कैनाइन्स इन टोटल, टोटल मिला के 4 ही कैनाइन है, 2 ऊपर के जॉ में और 2 नीचे के जॉ में। दे आर शार्प एंड कोनिकल शेप, ये जो है काफी ज्यादा नुकीले होते हैं, कोनिकल होते हैं शेप में। एंड दे हेल्प टू टीयर फूड सच एज मीट। सो ये फूड को टीयर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रीमोलर्स। सो दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइन्स। ये जो प्रीमोलर्स है आपको कैनाइन्स के पड़ोस में मिलेंगे। एंड देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। 4 प्रीमोलर्स आपको मिलेंगे दोनों जॉ में, टोटल आपको मिलेंगे 8। दे आर फ्लैट एंड ब्रॉड इन शेप, ये काफी ज्यादा फ्लैट और ब्रॉड होते हैं शेप में, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड दे हेल्प टू च्यू, चॉप एंड ग्राइंड फूड, ये खाने को च्यू करने में, चॉप करने में और ग्राइंड करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोलर्स। सो दे आर वेरी ब्रॉड, द लार्जेस्ट एंड फ्लैट टीथ प्रेजेंट बिहाइंड द प्रीमोलर्स। ये जो है काफी ज्यादा ब्रॉड होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, फ्लैट टीथ होते हैं जो कि आपको प्रीमोलर्स के पीछे मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो,
देयर आर 12 मोलर्स इन टोटल 12 मोलर्स होते हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे। दे हेल्प टू ग्राइंड फूड कन्वर्टिंग इट टू स्मॉल पीसेस, ये फूड को ग्राइंड करने में मदद करते हैं और उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं। द लास्ट मोलर आर कॉल्ड विजडम टीथ, और जो लास्ट के जो मोलर है उन्हें विजडम टीथ कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो ये हम पढ़ने वाले हैं। सो टूथ हैज 2 पार्ट्स, क्राउन एंड रूट। सो आप देख सकते हैं टूथ के 2 पार्ट है, पहला तो क्राउन है, मसूड़े के उस ऊपर का जो हिस्सा है वो क्राउन कहलाएगा और मसूड़े के अंदर का जो हिस्सा है वो रूट कहलाता है। द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम is called the root and the root holds the tooth firmly in its place. So वो part दांत का जो मसूड़ों के अंदर है उसे रूट कहते हैं और ये क्या करता है, दांत को एक जगह प्लेस करके रखता है। क्राउन इज द वाइटेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। सो जो व्हाइट हिस्सा दिख रहा है वो क्राउन कहलाता है। अ टूथ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जो दांत है वो 3 लेयर्स से बनती है, एनामल, डेंटाइन और पल्प। आप देख सकते हो ये जो व्हाइट हिस्सा है ये एनामल है, उसके अंदर है डेंटाइन और उसके अंदर है पल्प। तो इन 3 पार्ट से ही बनता है। एंड ये जो है ये हमारे मसूड़े वो गम्स हैं, यहाँ पे रूट कैनल है एंड रूट एंडिंग पॉइंट ये शो हो रहा है। दिस इज द बोन एंड दिस इज ब्लड वेसल। So let's move on to the enamel. So it is the white covering of the teeth. ये दांत का white covering है। जो outer most layer होती है दांत की उसे ये enamel कहते हैं। And it is the hardest part of our body. ये हमारी body का hardest part होता है। Below the enamel is the dentine. अब इस enamel से नीचे आपको dentine मिलेगा, ये भी काफी ज्यादा hard होता है। The innermost layer of the pulp below the dentine. अब ये क्या है, ये इनरमोस्ट लेयर जो है डेंटाइन के नीचे उसे पल्प कहते हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टिश्यूज मिलेंगे, यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगे और नर्व्स मिलेंगे। द पल्प इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। ये जो पल्प है ये सेंट्रल पार्ट है हमारे दांत का। एंड द ब्लड वेसल्स सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द टीथ, और जो ब्लड वेसल्स है वो हमारे दांतों को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। The nerves are connected to the gum by a hole in the root of the tooth. So tooth के रूट में ये जो nerves हैं वो हमारे गम से कनेक्टेड हैं। Let's move on to tooth decay. दांत का सड़ना। So when we eat food, जब हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं फूड के वो हमारे दांतों के बीच में चिपक जाते हैं। Germs and bacteria can grow on it. अब इसमें क्या होते हैं, germs और बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं और क्या करते हैं, and convert sugar present in food into acid. So जो भी शुगर हम खाते हैं अपने फूड में उसे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। If we do not brush our teeth properly, अगर हम अपने दांतों को ठीक से ब्रश नहीं करेंगे, the germs multiply and form a sticky yellow coating called plaque. और ये जो है जर्म जो है वो बढ़ जाते हैं और ये एक येलो कलर का स्टिकी कोटिंग हमारे दांतों पे लगा देते हैं, जिसे हम प्लाक कहते हैं। दिस कैन लीड टू कैविटीज, और ये हमें कैविटीज इसकी वजह से हो जाता है। आप देख सकते हैं कैसे दांत सड़ रहे हैं। सो ऐसे हमें इसकी वजह से ही कैविटीज हो जाते हैं। द बैक्टीरिया देन अटैक द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प, और फिर क्या करता है बैक्टीरिया, फिर डेंटाइन को अटैक करता है और फिर पल्प पार्ट को अटैक करता है। When the pulp is attacked, there is pain and swelling. जैसे ही ये जो पल्प है ये अटैक्ड हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे दांतों में पेन और स्वेलिंग होने लगती है। This happens because nerves are present in the pulp. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो nerves हैं वो हमारे पल्प में मौजूद हैं। टूथ डिके रिजल्ट्स इन बैड ब्रेथ। अब क्योंकि हमारे दांत सड़ने लगते हैं तो हमारी जो ब्रेथ है वो भी बैड आने लगती है। कैविटीज हो जाते हैं, टूथेक हो जाता है, हमारे गम्स में से ब्लीडिंग होने लगती है तो ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, और तो और इनडाइजेशन भी होने लगता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। सो वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके। टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने दांतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए।
and to do this we must follow the healthy habits given below. और इसके लिए हमें healthy habits को follow करना चाहिए जो नीचे दिए हैं. सबसे पहले rinse our mouth well after every meal. हर खाने के बाद अच्छे से मुंह धोएं. Next, eat कैल्शियम रिच फूड लाइक मिल्क, रागी एक्सेट्रा. हमें कैल्शियम से भरपूर खाना खाना चाहिए जिसमें मिल्क, रागी ये सब चीजें होती हैं. डू नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड एरेटेड ड्रिंक्स. ज्यादा स्वीट्स ना खाएं, चॉकलेट्स ना खाएं या फिर एरेटेड ड्रिंक्स ना लें. नेक्स्ट, क्लीन आवर टंग डेली. अपनी जो है टंग को भी साफ करें. ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड. अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करें 2 बार दिन में, एक तो सुबह सुबह और एक सोने से पहले. इट इज इम्पॉर्टेंट टू फ्लॉस आवर टीथ. अपने दांतों को फ्लॉस जरूर करें. फ्लॉसिंग हेल्प्स टू रिमूव द फूड बिटवीन 2 टीथ. फ्लॉसिंग से जो भी खाना फंसा रहता है 2 दांतों के बीच में वो बाहर आ जाता है, जो कि कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ब्रश, जो कि ब्रश से रिमूव नहीं हो सकता. विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप. रेगुलर चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं. Exercise our gums by eating raw fruits and vegetables as they increase blood circulation. अपने गम्स को अच्छे से एक्सरसाइज करें. और कैसे होगा? जब हम रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे तो अच्छी से एक्सरसाइज मिलेगी हमारे गम्स को एंड हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा. Now let's move on to the correct way of brushing teeth. अब टीथ को क्लीन करने को तो कहा गया, लेकिन करेक्ट वे क्या है? लेट्स discuss. So, brush your teeth correctly. Move your brush both upwards and downwards as shown in the diagram. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, हमेशा ब्रश को ऊपर नीचे करके जो है ब्रश करें. ब्रश इन बिटवीन द टीथ. दांतों के बीच में ब्रश करें. ब्रश द बैक ऑफ द टीथ एंड द फ्लैट सरफेस ऑफ द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. दांत के पीछे के हिस्से को ब्रश करें और मोलर्स और प्रीमोलर्स को अच्छे से ब्रश करें. सो ये है करेक्ट वे ब्रशिंग करने का. नाउ लेट्स मूव ऑन टू माइक्रोब्स. माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स व्हिच वी कैन सी ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोब्स बहुत ही छोटे होते हैं और ये जो है सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द एयर, वाटर, सॉइल एंड इन आवर बॉडी. ये हर जगह है. एयर की बात कर लो, चाहे वाटर कह लो, चाहे सॉइल कह लो या हमारी बॉडी, हर जगह आपको ये मिलेंगे. They grow when they get proper warmth, moisture, air and food. ये तब ग्रो करते हैं जब इन्हें प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर मिलता है, वार्मथ मिलता है, एयर मिलता है और फूड मिलता है. Our body and blood provides ideal conditions for growth of certain microbes. So कुछ माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ब्लड है, वो एक बहुत ही अच्छी आइडियल कंडीशन देता है. Some microbes can make us ill and are called germs. कुछ माइक्रोब्स हमें बीमार कर सकते हैं, इन्हें germs कहते हैं. And they can cause infections and diseases. और इनकी वजह से हमें बीमारियां हो सकती हैं. Now let's move on to the types of microorganisms. So there are 4 main types of microbes. 4 मेन तरीके के माइक्रोब्स होते हैं and they are, पहला है बैक्टीरिया. They are responsible for causing diseases like typhoid, cholera, tuberculosis and pneumonia. So ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं. फिर आते हैं वायरसेस. They cause diseases like mumps, flu, dengue, chicken pox and they are even smaller than bacteria. अब जो है वायरसेस जो है ये इन बीमारियों को पैदा करते हैं और ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. फिर आते हैं प्रोटोजोआ. They cause diseases like dysentery and malaria. प्रोटोजोआ की मदद से ये बीमारियां होती हैं. फिर आता है फंगी. They cause diseases like athlete foots and ringworm. So फंगी की वजह से बीमारी होती है and they can be either very tiny or large enough to be seen through the naked eyes. ये जो है काफी ज्यादा छोटे हो सकते हैं, काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते. तो आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ, इन सब की पिक्चर्स है. नेक्स्ट आता है यूजफुल माइक्रोब्स. तो ये कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स थे जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. अब हम पढ़ेंगे कुछ यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में. सो सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ. हमारे डेली लाइफ में हमारे बहुत काम आते हैं. जैसे कि कुछ बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं मिल्क को कर्ड में. नेक्स्ट,
हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में मदद करते हैं. हेल्प्स इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिके करने में मदद करते हैं. नेक्स्ट, yeast is a fungus which is used in baking breads. ब्रेड को बेक करने के लिए ईस्ट, ये एक फंगस हम यूज करते हैं. मशरूम विच इज अ फंगस इज ईटन, मशरूम भी एक फंगस है जिसे हम खाते हैं. तो ये कुछ यूजफुल माइक्रोब्स थे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स. तो churn means mixed. Coiled is something twisted in a spiral shape. Acute edge is sharp edge. Cavity is hole. Floss is string used to clean teeth and gums in places where brush cannot reach. Gum is soft pink tissue that surrounds the base of the teeth. Now let's move on to let us recall. So digestion is the process of breaking down of food into simpler form which can be used by our body. Next, the organs of the digestive system are mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. Digestion of food begins in the mouth. Digestive juices from the mouth and small intestine help to digest the food. We must adopt good eating habits. There are two sets of teeth in the human body, temporary teeth and permanent teeth. There are 4 kinds of teeth: incisor, canine, premolar and molar. A tooth has 2 parts, crown and root. Enamel, dentine and pulp are the 3 layers of a tooth. Tooth decay causes bad breath, cavities, toothache, bleeding gums and indigestion. We need to take proper care of our teeth. Microbes are small living things found everywhere. Microbes are of 4 types: bacteria, virus, protozoa and fungi. Some microbes cause diseases whereas some microbes are useful to humans. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is exercises. So A exercise is take the correct answer. First one is, the digestive juice bile is secreted by the mouth, stomach, liver or small intestine. Correct answer is liver. Second one is, which teeth are used for cutting and biting food? Incisors, canines, premolars or molars? The correct answer is incisors. Question number 3, this is a long coil tube. Stomach, small intestine, large intestine or liver? Correct answer is small intestine. Question number 4, diseases like mumps, flu and measles are caused by bacteria, virus, protozoa or fungi? Correct answer is virus. Question number 5, number of incisors an adult has? 4, 8, 12, 16. Correct answer is 8. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is, in the mouth food mixes with saliva. Question number 2, nutrients from digested food are absorbed in the small intestine. Third one, the hardest part of our body is enamel. Fourth one, yeast, a fungus, is used in the baking of bread. And the fifth one is, microbes are small living things that can be seen only with a microscope. Now let's move on to C exercise, which is write short answers. Here the first one is define digestion. So digestion is a process of breaking down of complex food molecules into smaller parts. Next, question number 2, why do starchy food taste sweet after we chew them? So the saliva that is present in our mouth, it breaks down the starch into sugar and that's why it feels sweet when we chew it. Question number 3, what is the function of molars? So molars are mainly used for grinding and crushing food into smaller pieces. And now let's move on to question number 4. Name the 4 kinds of microbes. So the 4 kinds of microbes are bacteria,
virus, fungi and protozoa. Next, let's move on to E exercise, which is answer these. Here the first one is explain briefly what happens to the food in the mouth. So in the mouth, when the food enters, teeth start chewing it and breaking them into smaller pieces. The saliva mixes with the food and makes it soft and moist, and after this, when the food is broken down into smaller pieces, the tongue pushes the food down to the throat. Now let's move on to question number 2. What is the function of the large intestine? So the large intestine, it absorbs the excess water and mineral that is present in the food after it comes from the small intestine, and it sends this semi-solid waste through anus and it throws out through anus from our body. Now question number 3, what are the functions of teeth? So the teeth are used for biting food, for chewing, for talking, and also the teeth gives shape to our face. Next, question number 4, how are microbes useful to us? So the microbes change milk into curd, and also it is used for making bread. It helps in the digestion and also helps in the degradation of dead animals and plants. So it decays the dead animals and plants. Now let's move on to question number 5. What kind of food should we eat to keep our teeth healthy? So to keep our teeth healthy, we should not eat much sweets. We should eat calcium rich food. We should rinse our mouth after eating something. We should brush our teeth daily, twice, in the morning and at night. We should visit a dentist regularly and also do teeth exercise by chewing raw vegetables and fruits. So these are the answers that you have to write down. So with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.